Hello everyone, welcome to the discussion of physical chemistry portion of ANTS PT4. I hope आपका एग्जाम अच्छा गया. So चलिए शुरू करते हैं with the first question. So पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. इसमें पूछा है bond energy of NH, HH and N triple bond N are A, B, C respectively. The delta H for the reaction और हमें reaction भी given है. तो हमें पता है किसी भी chemical reaction के लिए we can write enthalpy change of reaction delta H is equal to summation of bond energies of reactants minus summation of bond energies of products. तो ये बन जाएगा reactant साइड में we have ammonia, इसका कोफिशिएंट है 2, so 2 into और अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में we have 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स और NH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है A, so this becomes 3 into A minus summation of bond energies of products. So products में we have N2 and H2. So H2 का कोफिशिएंट है 3, so 3 आ जाएगा और H2 के एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है और HH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है B, so 3 into B प्लस प्रोडक्ट्स में हमारे पास N2 भी है और N2 के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है. So N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी गिवन है C, so 3B plus C. So this becomes 6A minus 3B minus C. So given options में the correct answer is option A. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. इस क्वेश्चन में पूछा है 1 mole of ice is converted into water at 273 Kelvin. The entropies of H2O solid and H2O liquid are 38.2 and 60.01 respectively. The enthalpy change for the conversion is. So given reaction में H2O solid convert हो रहा है H2O liquid में, मतलब कि melting हो रही है या fusion हो रहा है H2O solid to H2O liquid. और fusion reaction या phase transformation reaction के लिए we know एक formula है delta S fusion. Entropy change in the fusion reaction is delta H fusion by the temperature melting point. तो यहां से मिलेगा हमें enthalpy change of the process delta H fusion. This is equal to delta S fusion into temperature melting point. अब delta S fusion हो जाएगा entropy of product minus entropy of reactant. तो क्वेश्चन में गिवन है entropy of product H2O liquid 60.01, तो 60.01 minus entropy of reactant H2O solid, ये क्वेश्चन में गिवन है 38.20. So this is delta S fusion और melting point temperature है 273 Kelvin. तो solve करने पे the value comes out to be nearly 5954 joule per mole. So given options में the correct answer is option B. Now let's do question number 28. इस question में पूछा है the standard heat of combustion of solid boron is equal to और हमें 4 options given है और ऑप्शंस में एक्सप्रेशन गिवन है डेल्टा HF नॉट ऑफ B2O3 विच इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3. चलिए करते हैं. तो हीट ऑफ कंबशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, इसके लिए रिएक्शन हो जाएगी 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. तो हम लेंगे 1 मोल सॉलिड बोरॉन और इसका कंबशन कराएंगे टू फॉर्म द प्रोडक्ट बोरॉन ऑक्साइड B2O3. और बाय डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन हमें 1 मोल बोरॉन का चाहिए, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये बनेगा हाफ एंड दिस बिकम्स 3/4. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1, दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन सॉलिड. अब ऑप्शंस में हमें गिवन है डेल्टा HF नॉट ऑफ B2O3 या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3, तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 मोल ऑफ B2O3 is formed from its constituent elements in their standard state. तो इसमें constituent elements है बोरॉन और ऑक्सीजन, तो वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे. तो we have बोरॉन सॉलिड और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट है O2 गैस. So now we have to balance the reaction. This becomes 2 boron and this becomes 3/2 O2. तो इस रिएक्शन का जो ये इक्वेशन 2 है और इस इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा HF नॉट ऑफ B2O3. तो वी कैन क्लियरली सी
कि हम रिएक्शन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वी कैन ऑब्टेन रिएक्शन 2. दिस मींस इक्वेशन 1 इंटू 2 विल गिव इक्वेशन 2. इसका मतलब है डेल्टा H1 into 2 is equal to delta H2. So this gives us delta H1 equal to 1 by 2 into delta H2. And delta H1 is delta H naught combustion of B solid. So delta H naught combustion of boron solid, this is equal to half of delta H2, and delta H2 is standard enthalpy of formation of B2O3. So from this we can see the standard heat of combustion of solid boron is half of standard enthalpy of formation of B2O3. तो given options में the correct answer is option B. Now let's do question number 29. इस question में पूछा है given that A solid to A liquid, delta H given है X, A liquid to A gas, delta H given है Y, and पूछा है the heat of sublimation of A will be. अब सब्लिमेशन रिएक्शन का मतलब है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना. तो पहली इक्वेशन या पहली रिएक्शन है ए सॉलिड से ए लिक्विड. सो डेल्टा H1 इस पहली रिएक्शन का हमें गिवन है X. सेकेंड इक्वेशन ए लिक्विड से ए गैस, डेल्टा H2 हमें गिवन है Y. और हमें चाहिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस. तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड कर दें तो लिक्विड एंड लिक्विड A will get cancelled and we get A solid will give A gas. और ये है इक्वेशन 3. और इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ A. सो डेल्टा H3 यही हमें चाहिए. एंड क्योंकि हमने दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है दिस मींस डेल्टा H3 विच इज द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. दिस इज इक्वल टू X प्लस Y. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30. इस क्वेश्चन में पूछा है अ गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट अ वेरिएबल प्रेशर गिवन बाय P इक्वल टू 20 by V. ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम 1 liter to 10 liters द गैस अंडरगोज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 400 जूल. हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन. तो हमें हीट एब्सॉर्ब Q फाइंड करना है और हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन है 400 जूल. सो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये है 400 जूल. एंड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. एंड हमें फाइंड करना है Q. दिस मीन्स Q इज डेल्टा U माइनस W. And this becomes 400 minus work done W. So now we have to find the value of work done, and work done का expression होता है minus of P dV V1 से V2. Pressure का expression given है 20 by V. This becomes 20 by V dV, and volume की limits है 1 liter से 10 liter, 1 to 10. This becomes minus 20. एंड 1 by V का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln V. दिस बिकम्स ln V2 by V1 which is 10 by 1 which is 10. So minus 20 into ln 10, this is in liter atmosphere. This becomes minus 20 into ln 10 की वैल्यू है 2.303 एंड लीटर एटमॉस्फेयर को अगर हम कन्वर्ट करें इन जूल we have to multiply by 101.3. Now this comes out in joule and this is nearly equal to 4665.8 joule. So this is the work done in minus. So negative or minus 4665.8 joule ये है work done. So Q becomes 400 minus W and W is minus 4665.8 joule. तो सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 5065.8 joule. So given options में the correct answer is option C. Now let's do question number 31. इस क्वेश्चन में पूछा है the entropy of vaporization of benzene is 85 joule per Kelvin per mole when 117 gram benzene vaporizes at its normal boiling point. The entropy change of surrounding is. करते हैं इस क्वेश्चन को. So हमें बेंजीन का मास गिवन है 117 ग्राम. So moles of benzene ये हो जाएंगे गिवन मास 117
gram by the molar mass of benzene, and benzene is C6H6. इसका मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल. दिस बिकम 78. दिस इज 1.5 मोल. तो हमें एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है एक मोल के लिए 85 जूल पर केल्विन. सो 1.5 मोल्स के लिए डेल्टा एस बेंजीन जो सिस्टम है, डेल्टा एस सिस्टम, दिस इज 1.5 नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक मोल के लिए एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन 85 जूल पर केल्विन. सो दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम. अब क्वेश्चन में गिवन है कि बेंजीन वेपराइज कर रहा है अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, और जब कोई सब्सटेंस अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज करे, दैट प्रोसेस इज कंसीडर्ड रिवर्सिबल. एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वी नो, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स डेल्टा एस सराउंडिंग is minus of delta S system. This will become equal to minus of, and delta S system is 85 into 1.5 joule per Kelvin. So given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. Now let's do question number 32. इस क्वेश्चन में पूछा है 1 mole of magnesium in the vapor state absorbed 1300 kilojoule of energy if the first and second ionization energies of magnesium are 750 and 1450 kilojoule per mole respectively. The final composition of the mixture is. चलिए करते हैं क्वेश्चन को. So total energy जो मैग्नीशियम के एक मोल ने एब्जॉर्ब की है वो है 1300 किलोजूल, और एक मोल Mg को के फर्स्ट आयनाइजेशन के लिए, मतलब Mg को Mg प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 750 किलोजूल. सो Mg का एक मोल कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Mg प्लस. तो हमारे पास अब अवेलेबल है एक मोल Mg प्लस. तो अब जो रिमेनिंग अवेलेबल एनर्जी है, एनर्जी रिमेनिंग, ये हो जाएगी इनिशियल एनर्जी जो एब्जॉर्ब की थी 1300 माइनस जो एनर्जी पहले आयनाइजेशन में कंज्यूम हो गई, दैट इज 750. दिस इज इक्वल टू 550 किलोजूल. तो इतनी एनर्जी अवेलेबल है, और एक मोल Mg प्लस का कंप्लीट आयनाइजेशन Mg2 प्लस में करवाने के लिए हमें 1450 किलोजूल एनर्जी चाहिए. उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो जितने मोल कन्वर्ट हो पाएंगे उसकी वैल्यू होगी अवेलेबल एनर्जी 550 बाय द रिक्वायर्ड एनर्जी जो है 1450. तो इसकी वैल्यू है 0.38. तो Mg प्लस का हमारे पास एक मोल था, उसमें से 0.38 मोल कन्वर्ट हो जाएंगे Mg2 प्लस में. सो वी हैव 0.38 मोल ऑफ Mg2 प्लस, और Mg प्लस के मोल बचे होंगे 1 minus 0.38 which is 0.62. तो इन द फाइनल मिक्सचर वी कैन सी परसेंटेज ऑफ Mg प्लस ये हो जाएगा 62%, एंड परसेंटेज ऑफ Mg प्लस इज 62% एंड Mg2 प्लस इज 38%. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 33. इस क्वेश्चन में पूछा है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड C7H6O2 at constant volume is minus 321.3 kilojoule at 27 degrees Celsius. The heat of combustion at constant pressure is. तो हमें heat at constant volume मतलब कि QV given है, and heat at constant volume हमें पता है it is change in internal energy delta U. तो delta U हमें given है minus 321.3 किलोजूल, और हमें पूछा है heat of combustion at constant pressure. तो हमें QP पूछा है, and heat at constant pressure this is delta H. तो हमें डेल्टा U गिवन है और हमें डेल्टा H पूछा है, and we know डेल्टा H और डेल्टा U के बीच एक रिलेशन है फॉर अ केमिकल रिएक्शन. डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा NgRT. So we will use this relation. अब इक्वेशन है सॉलिड बेंजोइक एसिड का कंबशन, तो रिएक्शन हो जाएगी C7H6O2. इसका कंबशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट बनेगा. जब बेंजोइक एसिड का कंबशन होगा द प्रोडक्ट्स आर CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड. तो इसे बैलेंस करेंगे, इट बिकम्स 7, दिस बिकम्स 3 एंड दिस बिकम्स 15/2. तो
तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng जो होता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स में गैसियस स्पीशीज है CO2 7 माइनस, रिएक्टेंट साइड में गैसियस स्पीशीज है O2 which is 15/2. So this gives us डेल्टा Ng है -12. So डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा U is -321.30, ये डेल्टा U है, प्लस डेल्टा NgRT, एंड डेल्टा Ng की वैल्यू है -12 इंटू R, एंड टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, एंड केल्विन में ये हो जाएगा 300 केल्विन। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -321.3 -150 R। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में पूछा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर्स। द डेल्टा E फॉर दिस प्रोसेस इज, E स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। नाउ वी नो कि एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, एंड क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E विल बी इक्वल टू 0। सो गिवन ऑप्शंस में द आंसर इज ऑप्शन डी 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बेसिकली फाइंड करना है कि सी क्या बन रहा है। ठीक है ना, तो जो मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया गया है वो मेरे पास क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन का रिएक्शन कराया गया NBS के साथ, और NBS क्या करता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का काम क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बेसिकली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा A वो होगा हमारे पास CH2, यहाँ पे Br, और ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो गया NBS का यूज करके, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है। फिर इसका रिएक्शन कराया गया बेसिकली HBr परऑक्साइड के साथ, और HBr परऑक्साइड के केस में एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा, खरास इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो एंटी मार्कोनी का एडिशन में निगेटिव पार्ट वहां पे लगता है जहां पे नंबर ऑफ H क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसके मतलब Br हमारे पास इस कार्बन पे लगेगा और H यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां से बन गया CH2 Br CH2 CH2 Br। ठीक है, ये बन गया मेरे पास B। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम किसी एक कार्बन Br के बीच में इंसर्ट होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसका मतलब यहां से अगर हम लेट सपोज कि मैग्नीशियम को फर्स्ट Br यहां पे इंसर्ट कर दिए तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया MgBr, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन CH2 और यहाँ पे Br। ठीक है, अब देखिए कार्बन मेटल का बॉन्ड यहाँ पे, तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होगा, निगेटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मींस इसका नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करके Br को बाहर निकालेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं नंबरिंग कर दूं कार्बन नंबर 1, 2 और 3, तो कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 1 पे अटैक करके Br को बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहां से जो हमारे पास फॉर्मेशन होगा वो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन बी हमारे पास सही होगा। तो 35 का क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमको क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स यील्ड 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन एज ए मेजर प्रोडक्ट अपॉन एडिशन ऑफ HBr। ठीक है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन करना है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, बेसिकली इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है HBr का एडिशन करके। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जो हमारे पास फर्स्ट एल्कीन है वो ये है। ठीक है, तो इसका अगर हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, एडिशन कराएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन पे एडिशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड इसके तरफ ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड जब इसके तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखिए ये यहाँ पे H आके लग गया और यहाँ पे बन गया आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन मैक्सिमम स्टेबलाइज है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे Br माइनस अटैक करके आपका किसका फॉर्मेशन कर दिया, बेसिकली 3 ब्रोमो, ठीक है ना, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब फर्स्ट ऑप्शन से हमारा 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या होगा, सेकंड में भी हमारे पास जो एल्कीन दिया गया है वो एल्कीन हमारे पास सेम ही है, तो HBr का एडिशन यहां भी होगा, तो सेम रिएक्टेंट सेम बनेगा हमारे पास 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, इससे यहां से भी फॉर्मेशन होगा। पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहां पे लगेगा H और बनने वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, तो इस कार्बन पे Br अटैक करके वहीं पे एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी हमारे पास 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है, जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में CH2 है, यहाँ पे अगर हम HBr का एडिशन कराएंगे तो सबसे पहले जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन ऊपर की तरफ क्या होगा, टर्शियरी, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास हो गया CH3 और यहां बन गया कार्बोकेटाइन। फर्दर ये कार्बोकेटाइन क्या है, हाईली स्टेबल है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तब यहीं से Br माइनस अटैक करेगा और फर्दर किसका फॉर्मेशन कर देगा, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन यहां से भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, B और C से तो हमारे पास 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। अब ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं। 4 जो मेरे पास एल्कीन दिया गया है वो बेसिकली ये वाली एल्कीन है ना। इसका जब रिएक्शन कराया गया HBr के साथ, तो इसके केस में जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा लेफ्ट की तरफ ब्रेक होगा, ओके। तो बनने वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या होगा, सेकंड डिग्री, बनने वाला कार्बोकेटाइन सेकंड डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज करेगा फ्रॉम सेकंड डिग्री टू 3 डिग्री, यहां से होगा, यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो बनने वाला कार्बोकेटाइन हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 डिग्री, जो कि मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड डिग्री, ठीक है। अब यहां से आपके पास Br माइनस अटैक कर देगा, तो फर्दर यहां से क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब 36 में जो चारों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, सबसे 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। इसका मतलब 36 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम सही है। सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन कर देंगे, ओके ओके। तो डी ऑप्शन सही है 36 क्वेश्चन का, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 37 में फाइंड करना है कि X क्या है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एल्कीन दिया गया है और उसका रिएक्शन कराया गया है KMnO4 हीट के साथ, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन, और मेरे पास बनने वाला कंपाउंड है कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पूछा गया कि X कौन सी एल्कीन होगी, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। जो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो मेरे पास ये वाला है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अगर इसका मैं रिएक्शन KMnO4 हीट के साथ कराऊंगा तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन होता, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड को आपने यहां से तोड़ना है, फिर दोनों तरफ किसको लगा देना है, ऑक्सीजन को, ठीक है। जब दोनों तरफ आप ऑक्सीजन को लगाएंगे तो लेफ्ट वाले कंपाउंड से, लेफ्ट वाले से हमारे पास बेसिकली कीटोन का फॉर्मेशन होगा। देखिए लेफ्ट वाले से हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो गया और राइट वाले से किसका फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ पे तो H है ना, तो यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन को मेंटेन रखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे KMnO4 इस एल्डिहाइड को छोड़ने वाला नहीं है, कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा KMnO4, और एल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड का जब जब ऑक्सीडेशन करता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां से आपके पास एक तो कीटोन बन गया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहां पे आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, और दूसरा आपके पास कीटोन बन गया। मेरे इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो फर्स्ट एल्कीन है उसी का हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया, तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है, मतलब कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी से आप देखेंगे, जब यहाँ पे आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, मतलब ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। अगर आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से एसिटल्डिहाइड मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी और डी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या है, आप चेक करेंगे तो फर्दर यहां से एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, प्रोपेनल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और यहां से भी आपका वो ये आपके पास कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है वहीं से ये कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल्स, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दिस एल्कोहल टुवर्ड्स
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस विद HBr, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कराना HBr के साथ। इसका मतलब HBr एक एसिड है, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल स्टेबल नहीं होते, इसका मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा तो सारे केस में बनने वाले कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है। तो अगर रेट कंपेयर करना है तो बेसिकली हमको कंपेयर करना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जो मेरे पास फर्स्ट अल्कोहल है बेंजाइलिक अल्कोहल, ये वाला, इसका अगर हम बेसिकली HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से बनने वाला कंपाउंड, यहां से जो बनने वाला इंटरमीडिएट है वो बेसिकली मेरे पास एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। तो सबके केस में जब HBr रिएक्शन करेगा और फिर यहां पे Br माइनस अटैक करके CH2Br बना देगा, मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे, इसके बेसिकली इसके केस में बेंजीन के पैरा पोजीशन पे NO2 लगा के दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब NO2 का माइनस M इफेक्ट काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ओके। तो यहां से जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये पहले वाले के रिस्पेक्ट में लेस स्टेबल होगा, बिकॉज NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में आपके पास यहाँ पे जो बेंजाइल अल्कोहल दिया गया है, इसके पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। इसका मतलब जब HBr के प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन होगा तो इसके केस में बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होगा। रीजन, क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है और OCH3 का प्लस M काम करता है। ये प्लस M मतलब मेसोमेरिक, और बेसिकली ये कैसा ग्रुप हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड डीस्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। इसका मतलब तीसरे के केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और चौथे वाले केस में हम देख लेते हैं। तो चौथे वाले केस में जो मेरे पास बेंजाइलिक अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा HBr के प्रेजेंस में, वो बेसिकली क्या होगा, जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे Br है, मतलब Br का हेलोजन का माइनस I इफेक्ट डोमिनेट करता है ना, हेलोजन्स के लिए इंडक्टिव डोमिनेट करता। तो इसके केस में इसका मतलब देखिए यहाँ भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरे पास ऑप्शन ए और बी है, ऑप्शन ए और बी में ऑप्शन ए न्यूट्रल है, न्यूट्रल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन पे यहाँ पे हो रहा है। बी वाले के केस में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसके पैरा पोजीशन पे माइनस M ग्रुप, दैट मींस माइनस M इसका बहुत पावरफुल होता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब सबसे कम स्टेबल यही होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका मतलब फोर्थ का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम, सॉरी सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम, ठीक है। सबसे फास्ट किसका होगा, सबसे फास्ट होगा तीसरे का, थर्ड ऑप्शन का, बिकॉज इसके पैरा पोजीशन पे प्लस M ग्रुप है, तो सबसे फास्ट होगा आपका तीसरे का, सबसे फास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करते हैं, यहाँ पे चौथे ऑप्शन में Br का माइनस I इफेक्ट काम कर रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में न्यूट्रल है ना। तो Br का माइनस I इफेक्ट काम करेगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का विद HBr ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपका हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके, ऑप्शन ए सही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमको निकालना था, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 39 एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा। और यहाँ पे जो आपके पास अल्कोहल दिया गया है वो मेथनॉल है, और वहां पे ऑक्सीजन का आइसोटोप्स भी दिया गया 18, ठीक है। तो जब इसका हम एसिडिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन कराएंगे तो बेसिकली यहाँ से वाटर निकलेगा। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H निकलता है एज ए फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर निकलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा और अल्कोहल का H निकलेगा। तो यहाँ से जो एस्टर बनेगा, बेसिकली बनने वाला एस्टर आपका कौन सा हो गया, मिथाइल बेंजोएट। क्या हो गया, मिथाइल बेंजोएट। और इसमें जो आपका ऑक्सीजन है ये वाला, ये अल्कोहल का ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द लेबल्ड O18 विल बी इन मिथाइल बेंजोएट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है।
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जब डिहाइड्रेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बाहर निकलता और अल्कोहल का H निकलता है, ठीक है ना। तो यहां से आपका जो मिथाइल बेंजोएट बनेगा उसमें ऑक्सीजन 18 होगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या सॉल्व करना है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 14 में हमको फाइंड करना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब इस कंपाउंड का रिडक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब इस कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, और जो मेरे पास कंपाउंड देगा साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पे एस्टर लगा के दिया हुआ है ना, OCH3, यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एल्डिहाइड दिया गया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल होता है। ये किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को बेसिकली छोड़ता नहीं है। कीटोन से भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा तो यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा तो यहाँ से आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। और एस्टर को भी अल्कोहल में चेंज कर देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सेकेंडरी यहाँ से एस्टर का भी अल्कोहल बन गया। इसका मतलब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए में एस्टर को उसने कुछ नहीं किया, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी सी देखते हैं, BCD। ऑप्शन बी में अगेन इसने एस्टर को छोड़ दिया है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी यहां से आप देखिए सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर दिया है और सबको अल्कोहल बना दिया है। सेकेंडरी अल्कोहल बना है कीटोन से, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, और एस्टर को पहले एल्डिहाइड में चेंज करेगा फिर एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में फाइंड करना है कि एसिडिक मीडियम में ये कंपाउंड जो अल्कोहल दिया गया है एक किसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला अल्कोहल है। एसिडिक मीडियम में आपको मालूम है एसिडिक मीडियम में OH स्टेबल नहीं होते, OH का डिहाइड्रेशन होगा। सबसे पहले इसका लोन पेयर H+ के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव। क्या बन गया यहाँ पे, OH2 पॉजिटिव। अब ये स्टेबल नहीं होता, तुरंत यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिंग के जस्ट बगल में कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, और जब रिंग एक्सपेंशन होगा तब नंबरिंग कर लेते हैं ऐसे ही बस समझने के लिए, 1 2 3 4 5 और इसको हम 6 बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे ही समझने के लिए बस। ओके, तो यहाँ से कार्बन नंबर 5 1 के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बेसिकली CH2 है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 5 1 से बॉन्ड ब्रेक करेगा और कार्बन नंबर 5 बेसिकली कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ये आपके पास हो गया रिंग एक्सपेंशन, और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और जब रिंग एक्सपेंशन करेगा तो यहाँ से कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग होगी, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 पे। तो ये बेसिकली है क्या, ये आपके पास एक 6 मेंबर्ड का रिंग है, ओके, जहां पे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और एक कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां से H बाहर निकलेगा और बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ, तो यहां से बनने वाला कंपाउंड आपका बेंजीन बन गया। तो 41 में जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा है, बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया गया है, और जो कंपाउंड बना है अल्काइल हैलाइड SO2 + HCl। तो पूछा है कि इस कंपाउंड का, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास SNI रिएक्शन होती है ना, उसमें हम SOCl2 का यूज करते हैं, डेट मीन्स थायोनिल क्लोराइड का यूज करते हैं, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड्स, ठीक है। और यहां से रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता था। आप देखिए जिस फेज से OH निकला है उसी फेज से, मतलब बेसिकली जिस फेज में OH है उसी फेज में Cl आके लगा हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आपका हो गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। और ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन आपका SNI मैकेनिज्म में होता है। कहां पे, SNI मैकेनिज्म। SN2 में क्या होता है, 100% इन्वर्जन। SN1 में क्या होता है आपका, SN1 में आपका होता है रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों। तो ये जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का वो बेसिकली SNI है, डेट मीन्स 42 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आसान क्वेश्चन है, आपने SNI पढ़ा होगा तो बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या फाइंड करना है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑफ देयर हीट ऑफ कंबस्टन, है ना। हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करना है, उसका ऑर्डर फाइंड करना है। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स दिया गया है, ओके। तो हीट ऑफ कंबस्टन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबस्टन भी क्या होगा, ज्यादा। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है देन हीट ऑफ कंबस्टन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहां से देखिए जो आपके पास 3 कंपाउंड दिया गया है, सबके केस में नंबर ऑफ कार्बन सेम है ना, सबके केस में नंबर ऑफ कार्बन 7 है, पहले वाले, दूसरे और तीसरे में। और स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग क्या होती है, 6 मेंबर्ड रिंग हाईली स्टेबल, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। इसका मतलब 3 मेंबर्ड का रिंग अनस्टेबल होता है, इसका मतलब उसका हीट ऑफ कंबस्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके स्टेबिलिटी कम है तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा। इसका मतलब पहले का हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा। पहले के बाद देखेंगे तो 6 और 5 में 5 लेस स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन। उसके बाद तीसरे का साइक्लोहेक्सेन स्टेबल होता है तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन बन गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट मींस 43 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे बेसिकली E2 रिएक्शन है और E2 रिएक्शन से हमें पूछ रहा है कि कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो 44 देख लेते हैं। 44 में हमें फाइंड करना है कि मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास एक E2 रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे CH3 ऊपर की तरफ है और इस कार्बन पे Cl ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे इसका रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराया गया है, Na+ और OET-। सोडियम इथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, OET- एक स्ट्रॉन्ग बेस, अब इसको चाहिए H+। अब ये बेसिकली एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। तो ये E2 रिएक्शन में आपको ध्यान होगा, E2 रिएक्शन में एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन। एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रोजन को ही बेस निकालता है बीटा पोजीशन से। तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। अब देखिए इस बीटा कार्बन पे जो H है ये ऊपर की तरफ है ना, सेम प्लेन में है एज कंपेयर टू Cl। तो यहां से इस बीटा कार्बन से H को बेस नहीं निकालेगा। अब यहां से जो H निकालेगा, जो H यहाँ पे बिलो द प्लेन होगा, इसको निकालेगा बेस इस बीटा कार्बन से, और अल्फा से कौन निकलेगा, Cl। इसका मतलब इस अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा और केवल एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज दूसरे बीटा कार्बन पे H सेम प्लेन में है और सीन एलिमिनेशन नहीं होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है इन केस ऑफ E2 रिएक्शन। मतलब बनने वाला कंपाउंड आपका ये बन चुका है। तो इसमें है क्या, बेसिकली ये कंपाउंड A है। क्या है, A। तो 44 का ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे इसको प्लेन में दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या फाइंड करना है, टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कार्बोकेटायन एंड as well as the rules governing mechanism of carbocation rearrangement, which reaction is most likely to occur during the given reaction। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बेसिकली हमको फाइंड करना है कि कौन सा मैकेनिज्म सही है। तो सबसे पहले हम एल्कीन बनाते हैं अपना। ये हमारे पास एल्कीन दिया गया है और इसका रिएक्शन कराया गया HBr के साथ, दैट मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो यहाँ से पाई बॉन्ड, सबसे पहले पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटायन जो बनेगा, आपको मालूम होगा यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा ये हाईली स्टेबल है, डांसिंग रेजोनेंस है ना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब इसका रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, अब इसका रिंग एक्सपांशन नहीं होने वाला, ये 3 मेंबर्ड के रिंग, अब यहाँ से एक्सपांशन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, बिकॉज ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है, डांसिंग रेजोनेंस। ओके, मतलब इसका मतलब जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है A, B और C, ये तीनों के तीनों गलत है। यहीं पे Br- अटैक करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब बनने वाला कंपाउंड आपका कौन सा होगा, ये। इस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट या फिर कोई भी रिंग एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन अपने आप पे मैक्सिमम स्टेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसमें से A, B, C कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, नॉन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या फाइंड करना है, केमिकल रिएक्शन कराने के बाद Br2H- से मोनोब्रोमो डेरिवेटिव फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन क्या होगा या फिर कितने होंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब यहाँ पे स्टीरियो को काउंट नहीं करना है। आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है ना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका रिएक्शन कराया गया Br2H-। इसका मतलब रेडिकल मैकेनिज्म ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, तो अब यहाँ से फाइंड करना है कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, है ना। तब Br का एडिशन करना है, तो बताइए Br का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस करना है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है Br का, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन के ऊपर, टर्शियरी कार्बन के ऊपर यहाँ पे ये बन गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है,
आप देखिए, आप इन दोनों कार्बन तो ये दोनों कार्बन तो सेम है, आप कहीं से भी H को निकाल के Br लगा सकते हैं, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी बन गई। ओके, चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये भी दोनों कार्बन सेम है, कहीं से भी एक H को निकाल के आप Br लगा सकते हैं, मतलब ब्रोमिनेशन कर सकते हैं रेडिकल मैकेनिज्म से। तो ये 4 बन गए। और पांचवे की पॉसिबिलिटी क्या है कि सबसे निचले वाले कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन पे आप H को निकाल के Br लगा सकते हैं, दैट मींस ब्रोमिनेशन यहां भी कर सकते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म होता। ठीक है, तो यहां से टोटल पॉसिबल, अगर हम स्टीरियो को काउंट नहीं करते हैं तो टोटल पॉसिबल कितने बन गए? 5। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी 5। ओके, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 1 मोल ऑफ मिथेनॉल व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव्स आउट 723 किलोजूल पर मोल हीट। इफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इन किलोजूल। तो 1 मोल इथेनॉल को जब बर्न करेंगे, रिएक्शन हो जाएगी CH3OH मिथेनॉल प्लस ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसे बैलेंस करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ O2 आ जाएगा 3/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ H2O आ जाएगा 2। तो यह है बैलेंस्ड इक्वेशन। इस रिएक्शन में 1 मोल मिथेनॉल कंज्यूम हो रहा है और हमें गिवन है कि हीट रिलीज्ड, इसकी अमाउंट है 723 किलोजूल। मतलब कि 1 मोल मिथेनॉल जब बर्न करता है तो 723 किलोजूल हीट रिलीज होती है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जब 3/2 मोल O2 कंज्यूम होता है तो 723 किलोजूल हीट रिलीज होती है। तो 3/2 मोल O2 के कंज्यूम होने पे 723 हीट इज रिलीज्ड। सो ऑन कंजम्पशन ऑफ 1 मोल ऑफ O2, हीट रिलीज्ड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 723 डिवाइडेड बाय 3/2 किलोजूल एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 482 किलोजूल। तो आंसर हो जाएगा 482। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में पूछा है इन कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम, रिएक्शन गिवन है, द वैल्यूज ऑफ डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 आर, वैल्यूज भी गिवन है रेस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन एंड 1 बार। अज्यूमिंग दैट डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, the temperature above which conversion of limestone to lime will be spontaneous। तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिसके ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। Now we know for a spontaneous reaction at standard conditions, क्योंकि यहां पे हमें standard conditions given है, delta G0 should be less than 0 for spontaneity of the process and delta G0 हमें पता है it is equal to delta H0 minus T delta S0 less than 0। सो यहां से मिलेगा हमें कि T delta S0 should be greater than delta H0 and this gives us temperature should be greater than delta H0 by delta S0। सो अगर हम वैल्यूज पुट करें, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन डेल्टा H0 की वैल्यू गिवन है 179.1 किलो जूल पर मोल। इसे जूल में कन्वर्ट करें तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 179.1 इंटू 1000 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा S0 की वैल्यू गिवन है 160.2 जूल पर केल्विन। तो सॉल्व करने पे दिस गिव्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, नियरली वैल्यू आती है 1118 केल्विन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1118। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, और हमें कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करें। अगर हम अमाउंट इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम रहती है। तो एग्जांपल्स आपके क्लास नोट्स में भी लिखवाए जाते हैं। तो मास ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, तो ये है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड प्रॉपर्टी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये इंटेंसिव है। EMF ऑफ सेल ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये भी इंटेंसिव है। प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करेगा, तो वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलैरिटी
मोलैरिटी या अदर कंसंट्रेशन टर्म्स दे आर ऑल इंटेंसिव, तो मोलैरिटी इंटेंसिव है एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो टोटल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसमें है 7, तो हमारा आंसर होगा 7। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में पूछा है 1 mole of an ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees Celsius. If the work done during the process is 3 kilojoule, the final temperature will be equal to, और हमें CV given है 20 जूल पर केल्विन। चलिए करते हैं। तो वर्क डन हमें गिवन है 3 किलोजूल एंड क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन इज नेगेटिव, so this becomes -3 किलोजूल एंड किलोजूल को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें दिस बिकम्स 3000 जूल। तो ये है वर्क डन एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज Q होता है 0। नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q तो 0 है, सो डेल्टा U इज इक्वल टू W विच इज -3000 जूल। अब एक आइडियल गैस के लिए डेल्टा U का एक्सप्रेशन होता है NCV डेल्टा T एंड दिस इज इक्वल टू -3000। नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, CV की वैल्यू गिवन है 20 जूल पर केल्विन एंड डेल्टा T इज फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन दिस इज 300 केल्विन। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -3000। सो यहां से मिलेगा हमें T2 माइनस 300 इज इक्वल टू -150। दिस गिव्स अस T2 इज इक्वल टू 150 केल्विन। सो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर 150।